رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور آبنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں۔ میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں کچھ ربع اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی تو یہ قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے 128 ارب روپے کی عمومی سبسڈی کے ذریعے عوام کو براہ راست ریلیف دیا۔ پھر جلدی صوبائی حکومتوں کی تعاون سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی، نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح
नमू 6.1% तक रही है, जबकि खदमात के शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई है। LSM और खदमात की शोबों की शरह नमू पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल 4 अरब डॉलर से कम थे और जो अब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी हैं। तरसीलात से ज़र भी नई बुलंदियों को छू रही हैं। पिछले माली साल के 38 अरब डॉलर के मुकाबले में इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात का हजम 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह इस साल भर की तरसीलात 41 अरब डॉलर से तजावत कर जाएंगी, जो कि हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। ABR की टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासिब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। इन इक़दामात के नताइज हमारे मालियाती इस्तेहकाम में भी नुमाया नज़र आते हैं। हमारा मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा। 2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में GDP के 0.7% के बराबर दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में GDP के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। पिछले माली साल में अफरात ज़र की शरह गुज़श्ता साल की 23.4% से कम होकर 4.5% तक आ गई थी। मौजूदा साल के दौरान भी ईरान अमेरिका जंग के बावजूद भी महंगाई की औसत शरह तकरीबन 7% रहने की तवक्को है, जो कि मौजूदा माली साल के तखमीना 7.5% से कम है। हालिया महीनों में अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह मशरिक़ वस्ता की कशमकश है। इंशाअल्लाह जंग के बादल छटे तो महंगाई की शरह भी कम हो जाएगी। हमारे मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम की वजह से हमारी मईशत पर आलमी तरक्याती और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है और दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज़, फिच और S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हुई। जनाब स्पीकर, इसी इत्माद का नतीजा है कि पाकिस्तान 2022 के बाद पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी बॉन्ड मार्केट में वापस आया। 4 साल में पाकिस्तान ने पहली मरतबा $750 मिलियन यूरो बॉन्ड का कामयाबी से इजरा किया। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हमारी बॉन्ड्स की तलब मुस्तहकम रही। इसका तसलसल हमें पिछले माह नज़र आया, जब पाकिस्तान ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क की तारीख का पहला पेंडा बॉन्ड जारी किया, जिसकी मांग हमारी पेशकश से 5 गुना ज़्यादा थी। ये 2.5% मार्का पर जारी किया गया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया के दूसरे बड़ी माशी निज़ाम का हिस्सा बन गया। जनाब स्पीकर, माशी बेहतरी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इस बेहतरी के पीछे पाकिस्तान के कॉर्पोरेट शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। कॉर्पोरेट शोबे ने जनवरी-मार्च 2026 में पिछले साल के इसी अरसा के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफा हासिल किया, जबकि मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में ये मुनाफा 9% रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद में पिछले 1 साल में 1,73,000 नए सरमायाकारों का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खुशहाल बात यह है कि नए सरमायाकारों में एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस साल में अब तक 11 IPOs का इजरा हो चुका है, जो कि पिछली 2 दहाइयों में एक साल में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तरह SEC पे में 39,000 नई कंपनियों का इंदराज हुआ है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, वियोन, BYD, अरामको, अलीबाबा ग्रुप, AD पोर्ट्स,
रकमी, मशरक और टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान में सरमाया कारी कर रही हैं। हुकूमत के कायम करदा टेक्नोलॉजी जोन में 250 से ज़ायद नई कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू किया है और 25,000 से ज़ायद टेक प्रोफेशनल्स को रोज़गार मिला है, जो नए और मौजूदा सरमायाकारों का पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बढ़ाते हुए एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल इसी ऐवान में मैंने अपनी बजट तकरीर के दौरान हमने ये कौम से वादा किया था कि हम दहाइयों से इल्तवा का शिकार निजकारी का एजेंडे को अमली शक्ल देंगे। मैं आज इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि वादा सिर्फ वादा नहीं रहा बल्कि एक हकीकत बन चुका है। हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक के निजकारी से आगाज़ किया और फिर 23 दिसंबर 2025 को पूरी कौम ने देखा कि इस्लामाबाद में एक शफाफ और बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर होने वाली नीलामी के ज़रिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के एवज़ निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीखी निजकारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक है कि निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अलमबदार है। प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निजकारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। इसमें डिस्कोज, जेनकोज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हवाई अड्डे शामिल हैं। इस सिलसिले में 3 डिस्कोज के पहले बैच की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक फ़ाल, मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतज़ामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की ज़मानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सर अंजाम नहीं पा सकता और ना ही तरक्याती कामों के लिए वसाइल मुहैया हो सकते हैं। इसलिए FBR में जामे और वसीतर इस्लाहात जारी उसारी हैं। FBR में इस्लाह के मुताबिक कि अब तक के नताइज जनाब स्पीकर बहुत हौसला अफजा हैं। माली साल 2022-23 में FBR की सालाना टैक्स वसूली 7,200 अरब रुपए थी, जो कि अगले 3 सालों में दुगना हो गई है और मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर 13,000 अरब तक पहुंच जाएगी। ये इजाफा एक ऐसी कारकर्दगी है जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की हालिया तारीख में कम ही मिलती है। ये सिर्फ महसूलात में इजाफा नहीं बल्कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में एक स्ट्रक्चरल तब्दीली है। मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि इस तब्दीली की क़ियादत खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो हफ्ता वार इजलासों की खुद सदारत करते हैं और पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं। जनाब स्पीकर, इस तब्दीली के ठोस समरात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जिसमें मरकज़ी डैशबोर्ड्स, वीडियो एनालिटिक्स और टैंपरिंग अलर्ट से मदद ली जा रही है। ये निज़ाम 27 सीमेंट फैक्ट्रियों और 75 शुगर मिलों पर नाफिज हो चुका है। सिर्फ इन 2 शोबों से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 61 अरब रुपए अज़ाफ़ी टैक्स मुतवक्के है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर मुबनी कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट का निज़ाम 840 से ज़ायद हाई रिस्क केसेस की निशानदही कर चुका है, जिनका मुतवक्के टैक्स इम्पैक्ट तकरीबन 34 अरब रुपए है। इस तरह फेसलेस कस्टम असेसमेंट के ज़रिए हमने इम्पोर्टर और कस्टम अफसर के दरमियान बराह रास्त राब्ते को कम किया है, जिससे ना सिर्फ पर कंसाइनमेंट महसूलात में इजाफा हुआ है बल्कि हिरासानी या आप हैरासमेंट की समझ लें और रिश्वत के इम्कानात भी कम हुए हैं। जनाब स्पीकर, आने वाले महीनों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के निज़ाम को नए शोबों तक तोसी दी जाएगी, जिनमें टेक्सटाइल, मशरूबात, आयरन एंड स्टील, घी और खुर्दनी तेल, टायर्स, पेपर एंड बोर्ड और दीगर शोबे शामिल हैं। ये इस तोसी मुल्क की मुनज़्ज़म सनत के एक बड़े हिस्से का अहाता करेगी। जनाब स्पीकर, इन तमाम इस्लाहात और इक़दामात का हतमी मकसद एक ऐसे टैक्स निज़ाम का हसूल है जो मुनसिफाना हो, जिसमें ईमानदार टैक्स दहिंदा पर कम बोझ पड़े, जो डेटा की मदद से टैक्स चोरी के वाक़यात का सद्देबाब करे और इंस्पेक्टर की स्वादीद और आर्बिट्री एक्शन की बजाय डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस के ज़रिए महसूलात में इजाफा मुमकिन